When Ramchandra will come and stay on your stone of the statue, then you will be delivered from this stone. That time was the Satta Yuga. Actually, sequence is Satta, Dapar, Treta, and Kali. This is the sequence. Then 1, 2, 3, 4. Satta 1, Dapar 2, Treta 3, and Kali 4. So that means that was Satta Yuga. And Gautam Rishi, he gave cars to his wife Ahila. That was Satta Yuga. So Treta Yuga means then Dapar Yuga will come, then Treta Yuga. So many and So much time. And so that time Gautam Rishi, he told, okay, according to my tapasya, tapasya ke bal par, according to the deed of my tapasya, I changed the sequence of the rotation of The yugas. yugas. Okay. Then coming Satta, then Treta Yuga has come. Treta Yuga. In Treta Yuga, Ramchandra has come. So when Ramchandra came, then Ramchandra he stepped on the stone of Ahila, then Ahila she delivered this katha. So that means Gautam Rishi with his tapasya ke bal par, and with the date of his tapasya, he also changed the sequence of the rotation of yugas. Then coming in Satta, then Treta, then Dapar, then Kali. Another also sweet pastimes, also that was in Satta Yuga's Katha. In Satta Yuga there are many Muni Rishis, they perform bhajan and sadhan. But once there was no rain, about 3-4 years, no rain coming. So no rain means is what? No grain. No grain. Understand? If rain will not come, how to the grain will come? That the all Rishi Munis, they are thinking what will do now. How they maintain their life. Actually, that Muni Rishi, they came in the ashram of, also that name is, I think also, Gautam Rishi. Different names are Gautam. But that Gautam Rishi, with his tapasya, his ashram, completely full of grains, vegetables, everything is there. That time, Satta Yuga, many Rishi Munis, according to their date of तपस्या के बल पर क्या करते हैं, अपने एरिया में वो सब हरा भरा रखते थे, हरी भरी रखते, हरी भरी समझ रहे हो, माने फल मूल सब्जी आदि सब अपने होता है. तो गौतम ऋषि अपने बल पर उसके रखा, तो सब ऋषि मुनि उनके पास आ गया. किंतु समस्त ऋषि मुनि के गौतम ऋषि कहने लगे कि हमारे आश्रम में आप रह सकते हैं, एक कंडीशन. क्या कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन? हमारे आदेश बिना आप ये आश्रम को छोड़ करके नहीं जा सकते. हमारे आश्रम में आप रहिए. जब तक मैं आदेश नहीं दूं तो आप हमारे आश्रम को आप छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते. तो ऋषि मुनि देखा तो अभी तो प्राण निकलने वाले हैं, क्योंकि सब्जी नहीं है, यहाँ तो भी पानी तक भी नहीं है. सब ऋषि मुनि क्या करने लगे? गौतम ऋषि के आश्रम पर रहने लगे. All the ऋषि मुनि they are staying in the ashram of Gautam Rishi. In this way, few years passed. Then again heavy rain coming, and the corns and everything सब आने लगे. तो समस्त ऋषि मुनि सोचने लगे, all ऋषि मुनि thinking I have to return back our ashram. But Gautam Rishi, he did not give them permission. Because कथा बात क्या था? उसके आगे बिना बाहर मत उनके आदेश बिना बाहर नहीं जा सकते.
without his permission. But Gautam Rishi, he did not give the permission. Then सारे ऋषि मुनि विचार करने लगे हम आश्रम गौतम ऋषि के आश्रम से कैसे निकले, निकले कैसे। तो उस समय गौतम ऋषि के पास जो आदमी गौतम से आदेश निकले, तो ऋषि मुनि एक विचार के लिए गौतम ऋषि के ऊपर कुछ हम लांछना लगा देते हैं। लांछना समझ तो ब्लेम, वी कैन मेक वन ब्लेम तो गौतम ऋषि, accusation. तो गौतम ऋषि एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। और जब स्नान कर उसमें थोड़ी सी नदी के घाट पर जो है थोड़ा सा अंधेरा था, पेड़ के छाया से अंधेरा था, लिटिल बिट डार्क एंड ऑन द स्टेप ऑफ द रिवर। तो ऋषि मुनि ने किया कि एक माने फूस के द्वारा दे मेड वन काउ विद द क्या बोले ग्रास, घास के द्वारा एक गाय को रख दिया। वो ऋषि को पता ही नहीं था, स्टेप के ऊपर घाट के ऊपर गाय रख दी। और ऋषि ने किया कि जल्दीबाजी से नीचे उतर रहे थे, उनके पैर लगने से वो घास के द्वारा जो बना हुआ जो गाय था ना, वो गाय लुढ़कते लुढ़कते नदी में बह गया। और वो ऋषि मुनि तो पहले बैठे थे आगे पहले से, और वो लोग हल्ला करने लगे, एक गौतम ऋषि ने गो हत्या कर दिया। गौतम ऋषि गो हत्या कर, he killed a cow. So all the sinful actually cows, गो हत्या के सारे पाप ऋषि के पास है, इसलिए हम ऋषि के पास नहीं रहेंगे। गौतम ऋषि विचार में बात तो सत्य है, मेरे कारण से ही तो गाय मर गया है। गौतम ऋषि कुछ नहीं बोले, सब ऋषि मुनि जब इसी बहाने से चलने लगे, गौतम ऋषि कुछ नहीं बोले। फिर गौतम ऋषि आश्रम में जब लौट करके आया स्नान करके, तो मन मन विचार करने लगे, मैं कैसे गोहत्या कर दिया है, मैं संत महात्मा हूं और मेरे वजह से गाय कैसे मर गया, ये हो ही नहीं सकता है नहीं। तो उस समय गौतम ऋषि ने की ध्यान में बैठ गए, बोले कैसे वो गाय क्या था, क्या ये सचमुच गाय था कि वो कोई माया कल्पित था, है? इसलिए गौतम ऋषि ध्यान में बैठ गए, ध्यान में देखा वो गाय सचमुच वो गाय नहीं था, दैट वाज नॉट द रियल काउ, है ऐसा नहीं। तब गौतम ऋषि ने सारे ऋषि को अभिशाप दे दिया और मेरे ऊपर व्यर्थ जो है ब्लेम लगाया, लांछना लगाया, है फॉल्स क्या बोलते हैं, accusation. हाँ। तब उस समय गौतम ऋषि ने सारे मुनि को अभिशाप दे दिया, जाओ आज से तुम लोग सब जो वेद के जो सुना कथा और सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, आज नहीं। तब ऋषि मुनि दौड़ करके आकर के गौतम ऋषि के चरण पकड़ करके रोने लगे। गौतम ऋषि फिर उनके कर देखो मैंने अभिशाप तो दे दिया, अभिशाप दे दिया तो कैसे हो। तो अब उस समय गौतम ऋषि ने कहा ले जाओ, फिर वेद श्रवण, जो श्रवण पहले लोग वेद सुन करके याद रखते थे, इसलिए वेद के एक नाम क्या गया, श्रुति कहा गया। वेद पहले लिखा नहीं गया, वेद पहले लिखा नहीं गया था। वेद आदि जो है ये ऋषि मुनि लोग तत्व व्यक्ति के पास बैठ करके सुनता था, है और उसी वेद को दूसरे के बोलते थे, वो सुन करके याद रखता था, है श्रुतिधार। इसलिए वेद के एक नाम क्या कहा, श्रुति। श्रुति माने सुन करके याद रखते थे, है समझ। तब उस समय
ऋषि मुनि लोग इकट्ठे फिर कहने लगे अच्छा ये जो सत्य त्रेता दापर कली है ना, तो उस समय उन्होंने कहने लगे ये देखो इसको चेंज मैं करा देता हूँ। तो उन्होंने वो ऋषि भी अपने तपोबल के द्वारा पहले सत्ययुग के, क्योंकि सत्ययुग की कथा है ना, ये सत्य त्रेता सत्य दापर त्रेता कली आएगा, फिर सत्ययुग आएगा। पहले जाओ इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सत्ययुग के बाद क्या आया? त्रेता दापर और कली। तो फिर इसी प्रकार भी कहीं कहीं पुराण में ये सब कथा है, किंतु तो कथा जो है वो रामायण के कथा के साथ ज़्यादा बैठता है। मगर क्यों चेंज करा कि वो ऋषि फिर उसका ज्ञान मिल जाए, ज्ञान हो जाए उसका, जल्दी 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 से ज्ञान हो जाएगा। ये कथा, किंतु ये कथा ज़्यादातर ठीक लगता नहीं है। कथा जो लगता है वो रामायण की कथा की जरा अप्रोप्रिएट होता है। रामायण में जो मैं कथा सुनाया ये भगवान रामचंद्र की चरण कमल की स्पर्श से अहिल्या के जो पत्थर के जो शरीर जो है वो पूरा वो जीवित हो गया, उस कथा के साथ लगे होता है। इसलिए त्रेता युग पहले आ गया, सत्य के बाद त्रेता आ गया, और त्रेता के बाद द्वापर आ गया। क्यों हम लोग जो महामंत्र करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग की शास्त्र के व्याख्या के साथ इसमें जो है हरे कृष्ण मीन्स राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कुछ पंडित लोग इसी कथा को जो है अपने विचार बुद्धि से वो करना चाहते हैं, जो कहते हैं इस महामंत्र में 3 नाम है, हरि और कृष्ण और राम। ये लोग कहते हैं पंडित लोग। आप पंडित के बारे बैठोगे, स्मार्ट पंडित लोग बैठोगे, बिल्कुल आपके जो है उल्टा सीधा करके आपको सुना देंगे। किसी के सुनामी पंडित मिल जाए तो आपके पूरा आपकी जो है सुना देंगे आप। वो लोग क्या व्याख्या करते हैं? ये हरि माने हरि, पहले सत्ययुग में हरि आया था, ऐसा नहीं, हरि आ गया ना हरि, और इसके बाद क्या आ गया? कृष्ण आ गया, हरे कृष्ण आ गया, ये कृष्ण आ गया, और फिर क्या आ गया? हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम। इसमें जो राम फिर बाद में आ गया। सिर्फ पहले कौन आया? हरि आ गया, सत्ययुग में हरि आया, द्वापर युग में कौन आ गया? कृष्ण आया, और त्रेता युग में कौन आया? राम आया। इसलिए ये कहते हैं ये जो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें क्या 3 नाम है? हरि कृष्ण और राम। ये लोग ये व्याख्या करते हैं, किंतु ये व्याख्या ठीक नहीं है। यद्यपि व्याकरण के अनुसार हम लगाए तो व्याकरण से माना जाएगा, किंतु शास्त्र की विधान जो है वो नहीं है, शास्त्र के विधान नहीं है। क्योंकि ये बात नहीं है भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे। इसके बाद अच्छा चलो सत्ययुग के महामंत्र में उसके राम नाम है, तो उस समय तो राम तो नहीं, तो उसके राम नाम कैसे आ गया? वो कौन राम था? तो ये बात नहीं, क्योंकि वास्तव ये है हर युगों की महामंत्र अलग अलग रखा गया है, समझिए। केवल अपने विद्या पांडित्य के द्वारा आप ये नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है? कलि उपनिषद ग्रंथ में लिखा गया। ये कलि युग के महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हर युग की महामंत्र उसी पर रखा गया। सत्य युग के महामंत्र, त्रेता युग के महामंत्र, द्वापर युग के महामंत्र, कलि युग के महामंत्र।
इस हर जो कि महामंत्र अलग अलग है। ये नहीं है जे कृष्ण आगे है कि पहले आता। अच्छा यदि कहो, अच्छा कौन युग पहले है पहले बता दो। सत्ययुग है कैसे होगा? ये तो रोटेशन में आ रहे ना, ये रोटेशन जैसे सर्कल है, हाँ जी, जैसे साइकिल का एक स्पोक है, हाँ, मानो एक साइकिल का 4 स्पोक है, मान लो कौन सा पहला है आप मानोगी पता है? जब सर्कल होता है, गोलाकृति जब होता है 1 2 3 4 है, आप इसको 1 मान रहे हैं, हम इसको जो 2 माने 1 माने करें है? अच्छा पहले बताओ, संडे पहले है कि मंडे पहले है? सोमवार पहले है कि रविवार पहले है? कुछ कैलेंडर में देखोगे उसमें क्या लिखा रहता है? संडे फर्स्ट, संडे से, कुछ कैलेंडर से मंडे से लिखा रहता है। फर्स्ट, आज समझ में नहीं? उस कैलेंडर शनिवार से लिखा है, शनि रवि सोम मंगल, क्योंकि शनि रवि हमारा छुट्टी रहता है, तो छुट्टी को पहले ऊपर रख देते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। कुछ कैलेंडर में आप देखोगे लोग अपने हिसाब से रखते हैं, उससे क्या होता है? बोले संडे सैटरडे और संडे छुट्टी है, तो छुट्टी के ऊपर रख देते हैं, इसके मंडे से काम करते करते चले जाते हैं, सैटरडे फ्राइडे आ जाता है फिर। तो बात यह है, किंतु उसके मानेंगे कैसे है समझिए कि एक निर्धारित समय, एक नियम के लेना पड़ेगा, है समझिए। तो उसी प्रकार शास्त्र में ये लिखा गया, पहले सत्ययुग, इसके बाद द्वापर युग, इसके बाद त्रेता युग, इसके बाद कली। किंतु गौतम ऋषि ने अहिल्या की उद्धार के लिए उन्होंने अपने तपोबल से जो है ये रोटेशन को चेंज कर दिया, है समझिए। ऐसे कथा है वाल्मीकि रामायण में, ऐसे वर्णन है। पहले था, ठीक है, पहले था क्या? सत्ययुग था, इसके बाद क्या था? द्वापर युग, द्वापर था, इसके बाद त्रेता था, इसके बाद किंतु बाद क्या बोले, ये ऋषि ने, गौतम ऋषि ने अहिल्या की कृपा करने को, उद्धार करने के लिए अपने तो है। उस समय ऋषि मुनियों की इतने प्रभाव, साधन भजन की, तप बल की प्रभाव सब कर सकते हैं। आज यही तो कहते जा तो ये ब्रह्मांड सिर्फ ये ब्रह्मांड में हुआ ना? क्या ये जो गौतम ऋषि उसका अलग कर दिया, ये सिर्फ ये ब्रह्मांड में हुआ, दूसरा ब्रह्मांड में दूसरा सीक्वेंस, अच्छी नॉर्मल सीक्वेंस आते हैं। दूसरी ब्रह्मांडों में, दूसरी ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा ना फिर भाई। हम सूरीनाम में आ गया, सूरीनाम में के लॉ हम सुन लिया, आप इंग्लैंड में जाओगे तो इंग्लैंड में नहीं जाओ तो इंग्लैंड की लॉ सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है? अच्छा सूरीनाम में आप कार कैसे चलाते? कौन सा साइड में कार चलाते लेफ्ट हैंड, है? लेफ्ट हैंड में चलाते हैं। स्टीयरिंग राइट साइड पर होता है, लेकिन चलाते रास्ते में लेफ्ट साइड में भी चलते हैं। हाँ, इंग्लैंड में सेम। अच्छा हॉलैंड में जाओगे फिर क्या करोगे? अलग है, दूसरा स्टीयरिंग तो राइट। मेरा कहने उसी प्रकार भाई, जिस देश में अभी इस ब्रह्मांड में है, इसके नियम हमें सुनना चाहिए। और ब्रह्मांड में क्या हो रहा है जब जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो एक दूसरा प्रश्न हमारा, ये जो आप हमारा गोस्वामी बोला ना कि रामचंद्र ये टॉपा में नहीं आया, दूसरा टॉपा में, तो ये जो चेंज हुआ तो ये टॉपा में नहीं हुआ, दूसरा टॉपा में हुआ। कौन सा? नहीं, इसके जो कैलकुलेशन जो है हमारे आचार्य बात में दिखाया गया जी है। ये रामचंद्र कब आए थे? जी जैसे मैंने काल कहा था, एक भगवान, जो एक स्वयं भगवान होते हैं और एक कुछ अवतार होते हैं। जैसे मैंने कहा स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण कब आएंगे? कौन कृष्ण आएंगे? एक अवतार कृष्ण और एक अवतारी कृष्ण। लोग किसके पता ही नहीं है। जैसे 24 अवतार जो है, उस 24 अवतार में है, उसमें कृष्ण नाम एक जो है उसके अवतार है। आज समझ में नहीं, ये लोगों के पता ही नहीं है।
इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें स्पष्ट लिखा है और नारायण तत्व है, वो चतुर्भुज नारायण है। आज और ये जो क्या बोले वैनंदन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान का है। इसके अवतार और अवतारी के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए है। आज समझ, या हम लोग जो तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं, 12 महीने के नाम है, ये सब क्या है? सब भगवत संबंधी नाम है। ये जो नाम आज जो रखा गया सब विष्णु के ऊपर नाम ही रखा गया। वो कृष्ण नहीं, वो वृंदावन कृष्ण नहीं है। हम जो ललाटे केशवध्याय नारायणो मथोदरे, ये जो नाम आदि रखा गया ये सब कृष्ण के क्या है? अवतार है। और कृष्ण क्या है? अवतारी है। ये साधारण लोग के समझ में नहीं आएगा, बड़े बड़े विद्वान और लोगों की ये समझ में आएगा। ये कृष्ण तत्व जो है सब लोग के समझ में नहीं आएगा। तो महाराज क्या बोले, मैं तो बिल्कुल समझ में, खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं। ये कृष्ण तत्व जो है अतीव जटिल भी है, उसके समझने के लिए संत महात्मा के पास निरहंकार करके बैठना पड़ेगा। निरहंकार समझते हो? विदाउट प्राइड, गिव अप ऑल योर फॉल्स ईगो, तब समझ में आएगा। मैं कुछ जानता नहीं, कुछ सुन आपसे सुनने के लिए तद्विधि प्रणिपात पूरी प्रश्न सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञानी न ज्ञानी तत्वदर्शी। तत्वदर्शी महापुरुष के निकट जाकर के यह तत्व, ये समझ तो आपको सुनना पड़ेगा। और यदि आप सोचे मैं जान लिया, आप नहीं होगा। सनातन गोस्वामी कम नहीं है, समस्त विद्वान है, तथापि महापुरुष के प्रश्न पूछा, ये आप मुझे कृष्ण तत्व के बारे में बताइए। क्या सनातन गोस्वामी कृष्ण तत्व नहीं जानते थे? सनातन गोस्वामी पास सभी जानते थे, किंतु तथापि महाप्रभु के निकट दीनहीन होकर के श्रवण करने लगे। बोले श्रवण तब उसके शुद्ध होता है जो अपने को सारे ज्ञान को छोड़ देते हैं। ज्ञाने प्रयासे मुदवस्त नमंत जीवंती सम्मुखताम भवदी अवर्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिपतंग तनुमांग भी जो प्रयासो अजितो जीतो अभिस्तो ही स्तरीलक्काम। समस्त प्रकार ज्ञान को त्याग दे करके मैं जानता हूँ उसके छोड़ दो। भाई देखो बंसी है ना, अच्छा बंसी किस लिए बजता है? यू अंडरस्टैंड? बंसी बजता है किस लिए? बताओ। अरे उसके अंदर में खाली है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बंसी है ना, बैम्बू इज एम्प्टी, बैम्बू उसके अंदर में कुछ है ही नहीं, खाली है, खाली है। रूट डाल देंगे तो कुछ नहीं। उसके अंदर में यदि मिट्टी भर दिया जाए वो बंसी क्या हो गया? वो बजेगा नहीं। तात्पर्य किसने मैं कह रहा हूँ? उसी प्रकार भगवत तत्व आदि जानने के लिए मुझे समस्त प्रकार बहिर्ज्ञान से ऑल माई नॉलेज हैव टू क्या बोले उसको रिमूव कर दो, खाली हो जाए, तब वो कथा को धारण कर सकते, एक्सेप्ट करते हैं। अब यदि आप समझे मैं जानता हूं, तर्क के द्वारा नहीं होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु ने यही प्रश्न पूछा, के आमी क्या नवरे जारे तपत्र यहाँ नहीं जानी कोई चेहित है। मैं कौन हूं? हु आर यू? आप कौन हो? है? अभी आत्मा के बारे में आप इस शरीर के बोलो, मैं फलाना व्यक्ति हूं, मेरे नाम ये है, ये आपके जानते हैं। किंतु वास्तव ये वस्तु की जानने के लिए आत्मा, मैं आत्मा है क्या चीज, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, किंतु अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं है। रियलाइजेशन अबाउट योर सोल, आत्मा की उपलब्धि नहीं, किंतु अभी आपके विश्वास है मैं हूं, ये वास्तव सत्य है। मैं जिंदा हूं, ये आपके अभी अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा?
है। देखो इस संसार में हर प्राणी में एक अनुभूति आपके पास है। वो क्या अनुभूति है? मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, मैं इस शरीर में हूं, मैं मर नहीं गया है। देखो एक उदाहरण देता हूं, जैसे किसी को जब वो पैरालाइज हो जाता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, लकवा मार जाता है, पैरालाइज होता है ना, है? अच्छा देखो उसके हाथ पैर क्या होता है, काम नहीं करता। उसके पैर में यदि लकवा मार गया, पैरालाइज हो गया, उसके हाथ यदि पैर में रखे, उसे कुछ अनुभव नहीं होता है। उसके पता ही नहीं ये पैर है कि नहीं उसका, है? उसके मर गया, माने उसके सेंसिटिव जो है चला गया, मर गया। किंतु देखो अभी हम सब लोग की एक विशेष अनुभूति है, क्या? मैं जिंदा हूं। ये आपको अनुभूति है कि नहीं? मैं जिंदा हूं, मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूं। ये वास्तव अनुभूति आपके पास है। वो है क्या चीज? नहीं, आत्मा इस शरीर में है, इसलिए शरीर आप अनुभूति हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। किंतु आपके वो जो आत्मा की, जैसे मैंने आपके पूछा आप कौन है, आपने उत्तर दिया मैं आत्मा हूं, किंतु आत्मा के बारे में आपके अभी अनुभूति है ही नहीं है। वो आत्मा है क्या चीज? हैव यू सीन योर सोल? आत्मा को देखा, कितना बड़ी था, कितना लंबी था, कितना चौड़ा था, है? वो काले था कि गोरी था, वो कैसे था? वो बोले पता ही नहीं। तो आप आत्मा कैसे बता रहे? किंतु आपकी अनुभूति है, ये अनुभूति है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। किंतु वो आत्मा है कैसे, ये आपको पता है। इसी ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति। आत्मज्ञान एक होता है ज्ञान, एक होता है क्या? विज्ञान, नॉलेज एंड रियलाइजेशन। हमारी भारतीय शास्त्र में दो शब्द कहते हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान तो आपको हो गया, क्या ज्ञान किया? जो मैं शरीर नहीं हूं, आप क्या बता रहे? मैं आत्मा हूं। ये आपके ज्ञान हो गया। चलो है, किंतु बहुत लोग तो इतना भी ज्ञान नहीं है। उनके कहते हैं आत्मा, आत्मा क्या चीज है? जो रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उसे पकड़ के कहो, हे तुम कौन हो? मैं फलाना बता, नहीं तू आत्मा हो। अरे आत्मा क्या चीज है? खाने की चीज है क्या? क्या रसगुल्ला है? आम आम है? आत्मा क्या है? मीठा है? किंतु आपको इतना ही तो ज्ञान हुआ क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। किंतु अभी विज्ञान के बारे में चले। विज्ञान माने अनुभूति, रियलाइजेशन। वो विज्ञान क्या है? उसके हमें अनुभव करना है। ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस आत्मा के बारे में मुझे जानना है, अनुभूति करना है। इसी की अनुभूति करने के लिए कहते हैं संत महात्मा के पास जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत समित पानी सत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वह आत्म तत्व जानने के लिए ऐसे संत महात्मा के पास जाओ जो आपको इसके बारे में अनुभूति कराएंगे। तद विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छेत समित पानी सत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बोले गुरु के पास व तत्वज्ञानी के पास कैसे जाना है, इसको भी बता रहा है। उसके जानने के लिए कह रहे हैं तद सब संविधा लेकर के जाओ। हाथ में संविधा लेकर के जाओ। संविधा समझ में आता है? नहीं। संविधा उसे कहा जाता है, यज्ञ में आहुति देने के लिए लकड़ी ले जाते हैं ना, उसी के कहा जाता है संविधा कहा जाता है। यज्ञ करते हैं ना फायर सेकेंडरी, उसमें वो हवन सामग्री और मिला करके लकड़ी जो ले जाते हैं उसके स्वाहा स्वाहा करते हैं। क्या करते हैं आप? स्वाहा स्वाहा नहीं, आहा है स्वाहा है। पंडित कहते हैं स्वाहा और जुजमान कहता है आहा।
तो स्वाहा करने के लिए जो हम जाते हैं उससे कहते हैं समित पानी सत्र। यहाँ पर समित पानी, पानी माने हस्त, हाथ, हाथ में क्या लेकर के जाओ? समिधा लेकर के जाओ। समिधा माने यज्ञ के आहुति प्रदान करने के लिए जो सामग्री होता है, जैसे लकड़ी और सामग्री होता है, सब उसके समिधा। घी। तात्पर्य क्या है? तो उसी प्रकार संत महात्मा के पास जाइए, समिधा हाथ में लेकर, समिधा माने क्या तरह अपने सारे अहंकार को त्याग करके जाओ। और यदि तुम्हारे पास अहंकार है, उस अहंकार के क्या करो? स्वाहा कर दो। उसी की कथा है ज्ञान की अनुभूति है। मैंने इसलिए कहा रहा था, ये जो कृष्ण तत्व के बारे में जो बोलते मैं जा रहा था, एक होता है सर्व अवतारी कृष्ण कहा जाता है, वो अभिनंदन सांसद है। और उनकी अनेक जो है क्या बोले अवतार कहा गया है। शास्त्र में दो शब्द है, एक अवतार है और एक क्या कहा? अवतारी। अवतारी कृष्ण है वर्णन। वो कौन कृष्ण? वर्णन सांसद है। ऐसे उसे कहा जाए अवतारी कहा जाता है। अवतार क्या कहते हैं? द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत में, इसलिए लिख रहे हैं, क्या लिखा गया? एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कृष्ण, रामचंद्र स्वयं भगवान नहीं है, नृसिंह देवी स्वयं भगवान नहीं है। ये कृष्ण के लिए कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रामचंद्र भगवान है किंतु स्वयं भगवान नहीं है। नारायण भगवान है स्वयं भगवान किंतु स्वयं भगवान नहीं है। तो आप कहते स्वयं शब्द स्वयं किसने, कृष्ण के साथ स्वयं किसने जोड़ा गया? कृष्ण के कहा रहे स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कहा गया कृष्ण। स्वयं इसलिए कहते हैं जो सतह रूप में प्रकाश होता है, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है, दूसरे की अपेक्षा नहीं करते है। उसी हमारे शास्त्र में कहा जाता है वह कहते हैं स्वयं भगवान। रामचंद्र जो है इसको कहते अवतार कहा जाता है। इसके प्रमाण कहाँ मिलेगा? यहाँ पर पंडित लोग मर खा जाता है। पंडित लोग कहते जैसे उसमें स्पष्टीकरण कर दिया ब्रह्म संहिता में। पंडित लोग ये ब्रह्म संहिता पढ़ते ही नहीं है और जानते नहीं है ब्रह्म संहिता कहाँ है। ऐसे इसमें स्पष्ट लिखा क्या? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारो मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परमभक्त पराम पुमानजो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। देखो इसमें रामादि मूर्तिषु, जितने रामचंद्र से लेकर के जितने ही है ये सब क्या है? अवतार कहा जाता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन् नाना अवतारो मुकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संग परम अवतार परम पुमान परम पुरुष कृष्ण, और उससे सब प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है स्वयं भगवान है, जिसकी भगवत्ता दूसरे की भगवत्ता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, सत्य ही होता है। आज समझ, भगवान कृष्ण में विशेष जो गुण दिखा रहे हैं वो गुण किसी में नहीं है। रामचंद्र में वो गुण भी नहीं है। इसी के ही तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार करके दिखा रहे हैं। क्या दिखा? भगवान कृष्ण में कितने गुण हैं? बताओ। 64 गुण कहा गया, 64 क्वालिटीज। अनंत तो गुण है किंतु उसमें 64 गुण विशेष दिखा रहे। और उस 64 गुण में भी 4 गुण जो है वो रामचंद्र भी नहीं है। 4 गुण क्या है? रूपमाधुर्य, स्वीटनेस ऑफ हिज ब्यूटी, रूपमाधुर्य है। इतने सुंदर जो कृष्ण के रूप जो रूपमाधुर्य, लीला माधुर्य, स्वीटनेस ऑफ हिज डिवाइन पास टाइम्स, प्रेम माधुर्य, स्वीटनेस ऑफ हिज डिवाइन लव, प्रेम माधुर्य।
और फोर्थ वेणु माधुर्य, स्वीटनेस ऑफ हिज साउंड ऑफ हिज फ्लूट, गोविंद के वेणुध्वनि। बोले कृष्ण के रूप देखने के लिए जितने भी अवतार भी है वो भी तरसता रहता है, हैंकारिंग, ऑल द इनकार्नेशन दे आर हैंकारिंग टू टेक दर्शन टू कृष्ण। अच्छा, इसके प्रमाण कहाँ है बताओ? स्वयं कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनकी अवतार आदि भी तरसते रहते हैं। ये भागवत में है। पंडित लोग भागवत पढ़ते हैं किंतु जानते नहीं भागवत कहाँ से शुरू होता है। भागवत में कहाँ लिखा है? पंडित को पूछो, है इसमें पंडित की कथा सुनो। वो द्वारका की कथा प्रसंग में जब भगवान कृष्ण द्वारका में विराजमान थे, उस द्वारका में एक ब्राह्मणी जो है एक बालक के जन्म दिया। वो बच्चा के जन्म देने के साथ ही साथ वो बच्चा मर गया। हाँ समझो। तो ब्राह्मण क्या करने लगे, गुस्सा हो गया और वो अपने मृत पुत्र के लेकर के द्वारका में आ गए और कृष्ण के राज दरबार में रख दिया। ये भागवत में पढ़ना 10वें स्कंद में कथा है। और कृष्ण के गाली देने लगे। वो ब्राह्मण कृष्ण के गाली देने लगे। क्या गाली दिया? बोले राजा पापी है, इसलिए राजा के पाप के फलस्वरूप हम प्रजा वो भोग रहे हैं। वो गाली दिया उस सभा में। कृष्ण कुछ नहीं बोले। कृष्ण सर्वंतर्यामी है, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलते। कारण क्या जानते हैं भगवान? ऐसे करते करते वो ब्राह्मण के कई पुत्र जो है, कितना पुत्र हमारे ख्याल से 4-5 लड़के जो है मरे। और हर पुत्र जब उसके मर जाता है वो ब्राह्मण कृष्ण के पास ले आकर के रखते थे और गाली गलौज करता था। कृष्ण कुछ नहीं बोले, गाली गलौज करके बस चले जाते हैं। एक समय उनके मेरे ख्याल से 7वां पुत्र जब हुई और मर गया और वही मृत पुत्र के लेकर के कृष्ण के पास रखा। और उसी समय अर्जुन पहुंच गए द्वारकापुरी में, किसी कारण से आए थे कृष्ण के साथ मिलने के लिए। भाई कृष्ण अर्जुन दोनों बैठे हुए हैं और ब्राह्मण अजब सबक गाली गलौज करना शुरू कर। भले तू पापी हो, राजा पापी है, राजा के पाप के फलस्वरूप प्रजा पाप भोग कर रहे हैं। हमारे पुत्र मर गए राजा के पाप के फलस्वरूप। भाई देखो, जब इसे गाली गलौज करने लगे अर्जुन के सहन नहीं हुआ। अर्जुन खड़े हो गया। बोले हमारे मित्र और कृष्ण के कोई पाप ही नहीं है, उनके पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान के पाप स्पर्श कर सकता है? तो भगवान कैसे पाप कर? किंतु वो ब्राह्मण के साथ अर्जुन माने झगड़ने लगे। तो कहने लगे नहीं इसमें तो अर्जुन, भगवान सब सुन रहे, कृष्ण सब बैठे हुए सब सुन रहे, कृष्ण कुछ नहीं बोले। तब अर्जुन कहने लगे ठीक है, मेरे पास गंडीव है, तुम्हारे पत्नी जब दूसरी बार बालक के संतान को जन्म देगी उस समय मैं गांडीव के तीर के द्वारा हाँ कथा सुनो, टेलीफोन तो आएगा। हाँ बोले मैं उनके बच्चा को आत्मा को मैं रक्षा करूंगा, मरने नहीं दूंगा। कहाँ जाएगा? जमलोक पहुंचा नहीं दूंगा। ब्राह्मण कहने लगे ठीक है, यदि हमारे पुत्र के तुम बचा नहीं सके तो तुमको गांडीव त्याग देना, तुम्हारे नाम आपसे क्या गांडीवधारी नहीं होगा। अर्जुन के एक नाम क्या है? गांडीवधारी, जो गांडीव धारण करता है। ठीक है, अर्जुन सहमत हो गया। भाई वो ब्राह्मणी जब गर्भवती हुई और बच्चा देने वाला था, अर्जुन ने क्या कि उस स्थान पर गए, ब्राह्मण के घर में गए और अर्जुन ने क्या कि गांडीव के द्वारा ऐसे परकोठा बनाया। परकोठा समझते हो कि नहीं? शील्ड करके समझ में आ रहा है? इतना हजारों तीरों के द्वारा ऐसे परकोठा बना दिया, शील्ड बना दिया।
यानी यहाँ तक भी, हवा तक भी आगे पीछे भी नहीं हो सकते हैं। हवा तक भी, अंदर से बाहर, बाहर से हवा तक नहीं जा सकते। आत्मा कहाँ जाएगी है? जो ब्राह्मण ने जब बालक के जन्म दिया उस परपटा के अंदर है, फिर देखा क्या है, उसे बालक तो है ही नहीं, बालक की आत्मा तो बहुत दूर की बात है, वो बालक स्वयं ही है ही नहीं। पहले तो उनसे शरीर पड़ा रहता था है, और अभी क्या है, बालक के शरीर तक भी नहीं है। कहाँ चल गए पता ही नहीं, आत्मा तो बहुत दूर की बात है, बालक के शरीर तक भी, मृत शरीर भी नहीं है। कहाँ गए? ब्राह्मण बहुत गाली गलौज कर रहे हो, अर्जुन तुम बहुत ढीठ करते हो, डिग हाँकते हो, दिखता तुम्हारे गंडीव धारी। आज से गंडीव धारण करानी चाहिए तुम्हें। तुम जो अहंकार करते हो ये तुम्हारे नाम व्यर्थ है। अर्जुन शोक प्रकाश करने, वास्तविक सत्य कहाँ गए है? तो उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन सुनो, मेरे साथ चलो है, उस ब्राह्मण के बालक की आत्मा कहाँ पर है मैं जाता हूं। तो उस समय स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन है दिव्य रथ पर बैठे है। सारे लोगों के उन्होंने देख लिया, जमालय से सारे लोग देखा, कहीं वो ब्राह्मण के बालक मिले ही नहीं। फिर भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान ये लीला करते हैं, सब जगह में खोज लिया है, जम लोग से लेकर सर्वत्र लोग खोज लिया। फिर भगवान कृष्ण ने क्या कि कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण दोनों चलने लगे। बोले कैसे? पृथ्वी के पार करके, देखो यहाँ पर भी है, ये आप लोग पृथ्वी देख रहे हैं ना, इस पृथ्वी के पार करने के बाद आपके 7 द्वार मिलेगा। कितना द्वार? 7। ये सूक्ष्म द्वार है, ये भी वर्णन है शास्त्र में है। ये 7 द्वार मिलेगा है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, इसके भी 7 द्वार होता है। 5 द्वार होता है, फिर मन बुद्धि अहंकार, 5 3 8 द्वार होगा, 7 8 अष्ट द्वार। उसके पार करके चले है संग कृष्ण और अर्जुन। इसके बाद देखा जब पृथ्वी के ये स्थान को जब पार करके चले तो देखा बिल्कुल कैसे है, अंधकार स्थान, जिसको तमो स्थान कहा जाता है। लोगों की यही पता ही नहीं है तमो स्थान, अंधकार। बोले इतना घनाघोर अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र के तेज से जो है वो स्थान उजाला हो गया। ऐसे करते करते भगवान कृष्ण और अर्जुन वो तम स्थान के पार करके गए कहाँ, जिसे कहता है महाकालपुरम है। हाँ समझिए, महाकालपुरम में गए, जहाँ पर दिव्य स्थान वहाँ पर। जब वहाँ महाकालपुरम में जाकर जब पहुँचे कृष्ण अर्जुन, वहाँ पर जो अधिष्ठात्री देवता, महाकालपुर के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण और अर्जुन के स्वागत करने लगे। ये स्तुति है, भागवत में स्तुति है। आप भागवत पढ़ो, आप पंडित की कथा सुना सकते हैं। आप भागवत पढ़ लो इस कथा को, आप पंडित को सुना दो इस कथा, बोले है कि नहीं, देखो यहाँ पर है। तो वो महाकालपुरम में वो साक्षात आगे आकर के कृष्ण अर्जुन के जय स्तुति आदि करने लगे भगवान कृष्ण को। वो कहने लगे, तब भगवान कृष्ण तो सब जानते ही है, तो अर्जुन पूछने लगे आप कौन हो बताओ। तब उन्होंने स्वयं कहने लगे, मैं कृष्ण के ही अवतार हूँ है। महाकालपुर में काल सदी यहाँ पर रहता हूँ, और कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं उनको हमारे ये स्थान पर बुलाया गया है। तो फिर क्या की मेरे कहने के तात्पर्य वही जो महाकालपुर के जो भगवान कृष्ण के जो क्या बोलते हैं अवतार, कृष्ण के दर्शन करने के लिए इतने तरस गए, उनके यही लीला किया। उन्होंने कहा एक्चुअली वही ब्राह्मण मैं ही था, स्वयं कृष्ण की यहाँ पर बुलाने के लिए मैं ये लीला रचाया है। मेरे कहने की तात्पर्य कृष्ण की इतने सुंदर रूप, जो रूप दर्शन करने के लिए उनके अवतार आदि भी तरसते रहते
है, अहंकार ही करते थे, भगवान कैसे सुंदर है। वो भी तो कौन सा द्वारकाधीश कृष्ण था। और बड़े इससे जो कोई सैकड़ा गुना सुंदर रूप किसका है? वर्णन श्याम सुंदर है। बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप, जिस रूप देख करके सब मोहित हो जाता है। यहाँ तो स्वयं कृष्ण भी मोहित हो जाता है। बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप, कृष्ण भी मोहित था। कृष्ण भी मोहित हो जाता ब्रजेंद्रानंद कृष्ण भी मोहित है। अच्छा, आप अपने चेहरा को कहाँ आप देखते हो? आरसी में, हमारे मिरर पर देखते, दर्पण पर देखते हो कि नहीं देखते? क्या अपने रूप देख करके अपने आकर्षित होते? क्या नहीं होते। किंतु देखो स्वयं भगवान कृष्ण अपने रूप देख करके, परछाई को देख करके कृष्ण भी मोहित हो जाता है। परछाई समझते हो? शैडो, कृष्ण से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, हाँ, परछाई देख करके ये भगवान के कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, उसका रूप देख करके कृष्ण स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाता है। मेरे इतने सुंदर रूप है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, कृष्ण जे रूपे माधुरी देखी वासुदेवेर खो है। बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, स्वयं वासुदेव कृष्ण भी मोहित हो जाता है। इसलिए कहते कृष्ण से रूपे माधुरी देखी वासुदेव को, स्वयं वासुदेव भी आश्चर्य होता है, मेरे इतने सुंदर रूप है। यहाँ तक भी वो भी छोड़ दिए, कृष्ण के बाल रूप जो है, माने चाइल्डहुड जो बाल गोपाल रूप, वो बाल गोपाल रूप स्वयं कृष्ण देख करके कोई मोहित हो जाता है। ये लीला ही कहा जाती है इतनी सुंदर। इसलिए कृष्ण के स्वयं ब्रजनंदन श्यामचंद्र के रूप माधुरी कहा गया है। ये रूप को इतना सुंदर, इसलिए रूप माधुरी। सब अवतार में तो रूप सुंदर है ही है, किंतु कृष्ण के जो इतने सुंदर रूप कोई वर्णन करना संभव नहीं है। जे रूपे माधुरी देखी वासुदेव को, इतने सुंदर के रूप थे। केवल पशु पक्षी नहीं है, सभी कृष्ण के रूप देख करके मोहित हो जाए। भगवान कृष्ण के वर्णन संतन इतने सुंदर रूप। रामचंद्र के रूप भी सुंदर है, ये नहीं कहते, किंतु उससे सैकड़ों गुना रूप किसमें है, सौंदर्य किसमें है? वर्णन सुंदर है। ये समस्त तत्व सिद्धांत एकमात्र गौड़ीय वैष्णव छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप किसी संप्रदाय में चले जाइए, आपको बताएंगे नहीं, और ना जानते हैं, और जानते हुए पर भी वो बताएंगे नहीं है। समझ गए? जैसे इस्कॉन में चले जाओ, वो जानते हैं ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज वो केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास लिया था, वो बताएंगे नहीं आपसे है। इस्कॉन में चले आओ, बता पूछो ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज किससे संन्यास लिया। मैं ब्राजील में जाकर के अरे बताओ, बोले कोई बोले पता नहीं है, एक बाबा जी, वो एक जो है मथुरा के एक ब्राह्मण से संन्यास ले लिया, ऐसे बता। और कुछ बोलते वो काशी में जाकर संन्यास ले लिया। उल्टा पुल्टा बोलते, जानते हैं वो है। एक तो जानते नहीं है कुछ, और जो जानते हैं वो भी आपको बताएंगे नहीं है। ये तुक की बात है। अच्छा बताओ, साईं महाराज पहले कहाँ था? सन्यास लेको तो गृहस्थ जीवन के बाद जो सन्यास की पहले जीवन में कहाँ बिताए, ये बात बताओ पहले। सन्यास के बाद, अरे सन्यास, आफ्टर टेकिंग सन्यास, where did Swami Maharaj reside? when he was reside, कहाँ था, कहाँ होता है? मथुरा मठ, केशव जी गौड़िया। ये तो पहले बताओ, उनको पूछो क्या सन्यास लेने के साथ ही सब चला गया क्या? वृंदावन में आ गया क्या? नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सन्यास कहाँ लिया था, ये तो पहले बताओ है। कोई इस्कन के एक व्यक्ति के पूछो है, आप भी पूछो, ये आप बताओ है, ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज व्हेयर डिड ही गेट सन्यास, कहाँ लिया था, कौन स्थान पर लिया था? नवद्वीप में लिया था कि वृंदावन में लिया था
कि मथुरा में लिया था कि काशी में लिया था, कहाँ लिया था, ये पहले बताओ। शांत बांध बताओ। कुछ आप पूछ सकते नहीं सकते? यू कैन आस्क वेयर डिड ही गेट व्हिच प्लेस। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु सन्यास कहाँ लिया था बताओ? काटवा में। काटवा में कंटक नगरी कहता है। काटवा में चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से सन्यास लिया था। हैं? दो प्रश्न है। तो चैतन्य महाप्रभु किससे सन्यास लिया और कहाँ लिया, यानी कौन स्थान पर लिया था? तो उत्तर क्या हो गया? केशव भारती से सन्यास लिया था। उनके सन्यास गुरु कौन था? केशव भारती। और कौन स्थान पर लिया था उन चैतन्य महाप्रभु सन्यास? बताओ, अभी बोला काटवा। तो उसी प्रकार अब उनके किस्कन की कोई व्यक्ति के पूछो, भाई भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सन्यास किससे लिया और कहां पर लिया, कौन स्थान पर लिया? क्या काशी में लिया था, वृंदावन में लिया था, न गोवर्धन में लिया था, न कहां नवद्वीप में लिया था? कौन से स्थान पर लिया था? कहां लिया था? मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ। मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ में लिया था। वो केशव प्रज्ञान और भक्ति प्रज्ञान केशव से। और भी जो है इसमें जो है केशव क्या बोले भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के सन्यास के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उनके लल कपड़ा जो है, डोर, गोविंद, सन्यास, दंड आदि, ये सब किसने दिया? ये नारायण गोस्वामी महाराज। यहाँ तक भी नारायण गोस्वामी महाराज भी इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी उन्होंने उनके सारे ब्राह्मणों के काम करते हैं, माने क्या बोलते हैं जब की आहुति आदि जो करना है उन्होंने सब किया है। पुरोहित जिसको कहा जाता है, जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, ये पुरोहित के काम करते हैं। यज्ञ करने में जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, मंत्र आदि करते हैं, वो किसने किया था? भक्ति वेदांत नारायण केशव जी गौड़िया मठ में नारायण महाराज जी उनके सारे सामग्री सन्यास की सारे पौरोहित्य के मैंने पुरोहित के काम किया था, ब्राह्मण के सारे काम किया था। और अंत समय स्वामी महाराज ने बोला है, और अंतिम समय में स्वामी महाराज जी नारायण महाराज जी के हाथ पकड़ करके वृंदावन में ये कहा था, जे मैं विदेशी भक्तों के लेकर के तो आया किंतु उसको पूरा मैं ट्रेनिंग दे नहीं पाया, ये आप उनको सारे सहायता करो, उन्हें जैसे शुद्ध रूप में भक्ति में प्रवेश करें। आप तो इसको मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब में जाओ, गूगल बाबा में पूछ लो और यूट्यूब में जाओ, देखो सब आपको दिखाई पड़ेगा। द कन्वर्सेशन बिटवीन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एंड नारायण गोस्वामी महाराज। यहाँ पर भी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने यह अंतिम में उनका हाथ पकड़ करके कहा 2-4 दिन पहले शरीर छोड़ने के पहले है, ये मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे शरीर के तुम अपने हाथ से क्या देना? समाधि देना, समाधि देना है। और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज है वृंदावन में गए है, उनकी भक्त सन्यासी को लेकर के स्वयं क्या किया? समाधि के पौरोहित्य किया, मैंने कार्य सब किया। आप देखें यूट्यूब में देखना सर है, किंतु कुछ माने लोग माने क्या बोलते हैं, माने ईर्षा परायण लोग कहते हैं ये लोग अपराधी। अरे जो गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के इतने सेवा किया और उनकी इतने किया, वो अपराधी है। ये लोग कैसे शब्द बोलते, इसी कथा को सुनते तो बहुत कष्ट होता है। वो अपराधी है, जो कहते वही अपराधी है। कितना आप इसको यूट्यूब में देखो कैसे है। यहाँ तक भी मैं जो साक्षात रूप में देखा, ये तमाम कृष्ण महाराज है और गिरिराज महाराज, राधानाथ महाराज, जितने भी है, सत्स्वरूप महाराज, लोकनाथ स्वामी, लोकनाथ महाराज है, लोकनाथ स्वामी, अभी तक जितने जितने जीवित है तमाम महाराज, तमाम कृष्ण महाराज पधार गए। बाकी इन लोग को भी पूछो, मैंने साक्षात रूप में देखा, गुरुदेव के पास नारायण गोस्वामी महाराज के पास जाते थे भक्ति और जाकर के उनकी चरण पूजा करते थे, आरती उतारते थे और उनसे हरि कथा सुनते थे। उसके अभी तक भी टेप है, ये लोग यूट्यूब में और सब तक स्प्रेड किया, रिकॉर्डिंग भी है। अब रिकॉर्डिंग में द कन्वर्सेशन बिटवीन नारायण गोस्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, ये मैं भी साक्षात देखता हूँ। आज देखो
क्लास। और कैसे कैसे नवीन अभी अभी नया जो आने वाले जो नहीं ना, जिसके कोई पता ही नहीं है हाँ समझ में नहीं। और लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये गौड़िया मठ वाले विशेष कर नारायण महाराज की फलवार और नारायण महाराज ये इस्कन के अपराधी। कितना ये लोग कितना नीच प्रवृत्ति है, इसके लिए और कोई शब्द में तो व्यवहार नहीं कर सकता है। जो श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज इस्कन के लिए इतना किया, यहाँ तक भी नहीं भाई, इस्कन की जो संपत्ति आप देख रहे हो, इस विशाल संपत्ति, इसके रक्षा किसने किया? भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी। नारायण गोस्वामी। पर इसके भी इतिहास बताता हूँ, मुझे सारे पता है? इनके जब भक्ति वेदांत साईं महाराज के उनके जो क्या बोले फैमिली जो है इस्कन पर कोर्ट केस कर दिया, बोले ये हमारे पिताजी के सारे संपत्ति है, इसके जो है हम भागीदार है, दावेदार है? कोर्ट केस मुंबई में केस हुआ था है? ये कोई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडियन लॉ, भारतीय इसके लॉ होता है सन्यासी जो होता है सन्यास लेने पर उसके संपत्ति के कोई हकदार नहीं होता है। हकदार समझते हो? ये नहीं है, नो राइट्स, नो राइट्स। जैसे आप सन्यास ले लिया आपके सन्यास की संपत्ति आपके पुत्र भी प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा आप जो घर में जो संपत्ति छोड़ करके आया वो भी आप नहीं ले सकते, ना आप घर की संपत्ति ले सकते, ना आपकी संपत्ति घर वाले ले सकते। ये भारतीय हिंदू आइन में ये लिखा गया है। तो उनके बेटा ने, उनकी जो लोग ने क्या किया, भक्तिवेदांत साईं महाराज के लोगों ने क्या जी, हमारे पिता सन्यास नहीं लिया है, उन्होंने लिखा पढ़ा करके वो प्रचार किया, उसके संपत्ति को इकट्ठा किया, तो इस संपत्ति के जो अधिकारी हम लोग हैं। उसका बेटा बोला, उसके बेटा भक्तिवेदांत स्वामी है, समझ में आ रहे? अच्छा, तो जज सारे कथा का एविडेंस सुना, तो उसने जब इसमें जज ने ये पूछा, अच्छा बताओ ये सन्यास लिया कि नहीं लिया? तो इस्कन के पक्ष जो वकील कहा ये सन्यास लिया था, तो जज साहब ने कहा, ये पूछा ये सन्यास किससे लिया, इसके एविडेंस क्या है? यही पर जो है अटक गया। यदि इस कहा दे ये सन्यास नहीं लिया तो सारे संपत्ति किसके पास जाएगा? बेटे के पास जाएगा, हिंदू लॉ के अनुसार। किंतु देखो उस समय हमारी याद है ये तमाल कृष्ण महाराज है और ये सब के गुरुदेव के गिरिराज महाराज, ये सब गुरुदेव के मुंबई में ले गए और जज के साथ पास जाकर के श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी ने एविडेंस दिया, ये हाँ साक्षी दिया, ये मैं ही था, ये सन्यास के समय मैं ही था और मैं ही इनको जो है सन्यास के सारे पुरोहित तो मैंने किया। पुरोहित तो समझते कुछ, मैंने पुरोहित के जो काम किया था, जग आदि करना, ये मैंने किया, ये सन्यास लिया था। तो जज ने इस्कन के तरफ क्या कर दिया? केस को दे दिया, राइट दे दिया। और उनके सारे बेटा खाली हाथ में लौट गए, वृंदावन बिहारी लाल। देखो यहाँ पर यदि गुरुदेव यदि झूठ बोलते ये नहीं भक्तिवेदांत साईं महाराज वो सन्यास लिया ही नहीं, सन्यास लिया ही नहीं किसी से, तब उसके संपत्ति किसके पास जाता है? जब किसको दे देते? बेटा। अच्छा अभी बोलो इस्कन के जितने संपत्ति आप देख रहे हो, इसके संपत्ति के मूल रक्षक कौन हो गया? भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी। नहीं हुआ तो स्वामी गुरुदेव नारायण गोस्वामी अपराधी हो गया। कैसे ये लोग नीच प्रवृत्ति के शब्द कैसे बोलते हैं? मैंने सुनकर के खून गर्म हो गया। ये गुरुदेव ने उनकी इतना सेवा की, रक्षा है, और उनकी प्रतिष्ठा था जो भक्तिवेदांत साईं महाराज रोते हुए, अब उसको देखना टीवी में देखना, रोते हुए सीधा गुरुदेव के हाथ पकड़ करके कहा, ये महाराज नारायण महाराज हमारे जाने के पश्चात हमारे सारे शिष्य के आप देखभाल करना। देखभाल मतलब उनकी भक्ति राज्य में कैसे प्रवेश करें, शुद्धा भक्ति कैसे, वो लोग क्या जानते हैं? हमारे भारतीय के जो वेदों की बात वो क्या जाने है? या तो भी उनके पता ही नहीं है जूता लेकर के मंदिर में प्रवेश करना है कि नहीं करना है? क्या विदेशी लोगों के पता है? वो तो चर्च में जाते हैं, विदेशी लोग है चर्च में कैसे जाते हैं? जूता खोल करके जूता पहन कर, क्या बताओ? आप गए कभी चर्च में? कैसे जाते हैं? पूछे नहीं, आप चर्च में गए? हैव यू बीन चर्च?
How do you do? With shoes or without shoes? With shoes or without shoes? With shoes. With shoes. बट किंतु हमारे मंदिर में क्या होता है? Without shoes. है? ये तो पहले सीखना है ना। आप देखो हमारे मंदिर में जाने के लिए आपको ये पहले आपको सीखना पड़ेगा। जूता कहाँ रखो? बाहर रखो। हैं? किंतु ये विदेशी लोग के यही तो पता ही नहीं है, जिसको क ख कहा जाता है। मैंने क्या बोलते हैं? ABCD ज्ञान नहीं है। पहले इसके तो पहले सदाचार सिखाया जाए, है कि नहीं? ये सदाचार पहले, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कुछ सदाचार तो सीखे। है भक्ति ऐसे नहीं मिल जाएगा, है जूता पहन करके ठाकुर जी के पास जा करके हो जाएगा। सदाचार सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारे नारायण कृष्ण भक्ति वेदांत साईं महाराज ने कहा, ये हम तो उन्होंने तो बहुत प्रेम से एक कथा तो सुनाया। बोले मैंने उन्होंने जो शब्द बोला, मैंने नहीं बता रहा हूँ क्या बोला, जो मैंने केवल लाल बंदर के पकड़ करके लिया। उन्होंने के शब्द आप उसने सुनना है, यूट्यूब में सुनना। बोलते लाल बंदर, उन्होंने जो कहा मैं लाल बंदर के पकड़ करके लाया। क्यों? उनके पता ही नहीं है क्या करना नहीं करना। तो उसके शुद्ध सदाचार सीखना है, तब तो भक्ति होगा। बड़े बड़े बात करने से थोड़ी हो जाएगा, है राधा प्रेम कहने से थोड़ी हो जाता है। ये राधा प्रेम की बात बहुत दूर की बात है। पहले क्या सीखो? सदाचार, शुद्ध सदाचार, एटिकेट सीखा जाता है। ये सब सीखना पड़ता है। इसलिए साईं महाराज ने बहुत दृढ़ता के साथ, यहाँ तक नहीं भी देखो, स्वामी महाराज हमारे केशव जी गौड़मठ में तो रहा, स्वयं गुरुदेव की अवदान कैसे है, इसकी कथा सुनाओ लोगों के। जो लोग कहते हैं ये गौड़ीय मठ वाला व नारायण महाराज के परिवार से अपराधी है, उनको सुना। बोले भक्ति वेदांत तो साईं महाराज कैसे सन्यास लिया, कैसे मठ में कैसे आया, उसके तो सुनो। लाया किसको मठ में? भक्ति वेदांत तो साईं महाराज उन्होंने इलाहाबाद में बेंगल केमिकल फैक्ट्री तक ओपन किया, किंतु उसके चले ही नहीं है। वो हो गया, क्या बोले? बैंकक्रप्ट, देवला हो। Before he was sannyas. Before taking sannyas, वो फिर वहां से छोड़ करके मथुरा में आ गए। मथुरा में आकर के बंगाली घाट पर वहीं पर एक मकान किराए लेकर के रहने लगे और वो बिजनेस करने लगे, दवाई का बिजनेस करने लगे। वो फूटने वाले जो होते हैं ना, क्या बोले, वो बेचते थे। और यहाँ तक भी होने लगे, उनकी ऐसी स्थिति हो गया, वो किराया तो दे नहीं पा रहे थे, 2-1 महीने की किराया दे नहीं पाए। और शिला गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज एक दिन प्रातः काल में, जैसे हम वो क्या बोले मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक में वो जमुना के किनारे पर जा रहे थे। तो जमुना किनारे में गए, देखा अचानक भक्ति वेदांत साईं महाराज अभय बाबू मिल गए। उसके पहले नाम था अभय बाबू, अभय चरण दे, उसके जो गृहस्थ के नाम था अभय चरण दे। चलो गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज पूछा, ये आप ऐसे कैसे हैं? तब उन्हें सारे इतिहास को बताया, ये मेरे ऐसे ऐसे हो गया और सारा मेरा चला गया, मैं सब कुछ छोड़ के ये मथुरा में यहाँ पर रह रहा हूँ और ये दवाई बेच रहा हूँ। चलो गुरुदेव ने कहा, ये देखो आपकी उम्र इतने ढल चुके हैं, वृद्ध भी हो गया। कितना साल हो गया उस समय? 60-65 साल हो गया। जैसे ये काम करो, आप इसको छोड़ करके हमारे मठ में आ जाओ। केशव जी गौड़ीय मठ पास ही तो 200 मीटर्स, नॉट फार देन, ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर्स, 200 किलोमीटर्स नहीं, 200 मीटर। हाँ, कितने दूर? आप हमारे मठ में रहिए। उन्होंने कहा, देखो मैं वृद्धावस्था में मठ में रहूं, मठ में सेवा कैसे करूं? भाई मठ में रहने से मठ में सेवा करना है ना सेवा लेना है? सेवा करना है। रस्सी बनाना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा, झाड़ू देना पड़ेगा, है भाई। मठ में कहीं रहे, मठ में थोड़ी आपकी खिलाएंगे, थोड़ी बड़ी सेवा करो। इसलिए साईं महाराज कहने लगे, देखो मेरा वृद्धावस्था में ये सेवा नहीं होगा। किंतु गुरुदेव ने कहा, नारायण गोस्वामी ने कहा, बोले नहीं, आपके मठ में कोई सेवा करनी, ना झाड़ू लगाना पड़ेगा,
ना बर्तन साफ करना पड़ेगा, ना रसोई बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप केवल मठ में रहिए और थोड़ा सेवा कीजिए। बोले कौन सा सेवा करना है? गुरुदेव ने कहा मेरा जो हिंदी पत्रिका जो हिंदी मैगजीन है उसके केवल एडिट करो बस। 1 घंटा 24.5 घंटे में 1-2 घंटा क्या करना पड़ेगा? एडिटिंग करना पड़ेगा, है इतना ही तक है बस। और महीने में हिंदी पत्रिका निकलते, आज भी निकल रहे है। वो हिंदी पत्रिका को आप क्या करना पड़ेगा? एडिटिंग कर, लिखना नहीं है केवल, कहीं पर कुछ जैसे करेक्शन करना है बस, एडिटिंग करना है, यही करो बस। तब भी आना नहीं चाहते थे, बोले नहीं मन में नहीं होगा। गुरुदेव दूसरे दिन केटी उनके पास गए और उनके सारे सूटकेस था ना, रिक्शा में बैठा दिया, बोले चलो। देखो उनके साथ इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज साईं महाराज इतना प्रेम था, इतने सबका भाव मित्रता था, उनके रिक्शा में बैठा है। स्वयं गुरुदेव अपने पैसा दे करके, उनके पास तो पैसा है कि नहीं है पता नहीं है, उनको बैठा है और केशव जी गौड़ी मठ में लेकर के आए और वहीं पर रहने लगे। जहाँ पर मैं केशव जी गौड़ी मठ रहता हूँ, जिस कमरा पर रहता हूँ, नाउ स्टिल आई एम स्टेइंग केशव जी गौड़ी मठ, व्हिच रूम, दैट रूम ही वाज स्टेइंग। देखो वहीं पर रहने। फिर कई महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद श्री केशव जी गोस्वामी महाराज गुरुदेव परम गुरु महाराज आ गए, तो उसने कहने लगे आप सन्यास लो। बोले नहीं मैं सन्यास नहीं लूंगा। तो गुरुदेव नहीं तुम सन्यास लेना। तब अंत में उन्होंने सन्यास लिया और फिर आगे की कथा जो है अच्छा। तो ये इतिहास जानना चाहिए जोड़ के। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी लोग कथा में सुनाई पड़ता है ये इस्कॉन के कुछ भक्त लोग, नवीन भक्त लोग जिसके कोई ज्ञान नहीं है, पक्का ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, वो लोग कहते हैं ये नान महाराज और नान महाराज के प्रवास इस्कॉन की क्या है? अपराधी। क्या गुरुदेव तुम्हारे परम गुरुदेव गुरुदेव के हमारे मठ में रखा, उनके सन्यास दिया, उनके साथ इतने प्रेम, अपराधी है? कोर्ट में गए, कोर्ट में गए। अरे जो इस्कॉन के तुम आप इतना देख रहे हो, इस्कॉन के संपत्ति का किसने रक्षा किया ये तुम समझे है? यहाँ तक भी नहीं है। देखो श्रील स्वामी महाराज विदेश में गए, अमेरिका में गए, श्रील गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज उनके सारे जो है वस्तु को उन्होंने भेजा, करताल, मृदंग, यहाँ तक भी मिठाइयाँ, ठाकुर जी मूर्ति आदि सब है। और स्वामी महाराज के साथ भक्तन स्वामी महाराज श्रील गुरुदेव नानक इतने मित्रता था और महीने में उन्होंने क्या लिखता था? पत्र लिखता था। 300। अच्छा देखो आप पत्र किसको लिखोगे आप बताओ? जिसके साथ मित्रता आप लिखोगे तो ना, जिसके तुझे लिख दोगे क्या? हवा में थोड़ी लिखता है। देखो स्वामी महाराज हर महीने में श्री नारायण गोस्वामी महाराज पत्र, अभी तक वो फाइल्स है वो भी अभी क्या बोले किताब के रूप में छप गया हमारे गुरुदेव। क्योंकि इस्कॉन के लोग इतने धूर्त है, गुरुदेव को बोलते हैं ये लंचना लगाता है। ये लोग कहते हैं नहीं देखो स्वामी महाराज के साथ कितने संबंध है, गहरा संबंध है, प्रेम की गहरा संबंध है, गहरा समझ दो, डीप लव एंड अफेक्शन, रिलेशनशिप है। इसलिए गुरुदेव ने एक ग्रंथ भी लिखा, ये माई क्या लिखा? माय प्रिय बंधु एंड शिक्षा गुरु, माई प्रिय बंधु एंड शिक्षा गुरु है। देखो यहाँ तक भी जब स्वामी महाराज जब वृंदावन में वो कौन सा राधा दामोदर में रहते थे, वहां पर लिखकर जब गीता मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, गीता क्या बोलते गुरुदेव बीच बीच में जाते थे, राधा दामोदर मंदिर में जाते थे और दोनों एक साथ में बैठते थे और देखो रोटी चपाटी वो बनाते थे, सब्जी बनाते थे, दोनों एक साथ में बैठते थे और दोपहर के समय प्रसाद पाते थे, अचार और रोटी। ये समझ तो इतिहास है। मेरे कहने की यही तात्पर्य, बार बार मैं यही इंट्रोड्यूस करते जा रहा है, जो इस्कॉन के जो व्यक्ति कहते हैं ये नान महाराज जो अपराधी उनके भांति उनके कहीं स्थान नहीं मिलेगा मृत्यु के बाद। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो नरक में भी उनका स्थान नहीं मिलेगा। जो नान महाराज पर ऐसे ब्लेम लगाते हैं, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। मृत्यु के बाद उसके नाजनी कौन सा नया एक नरक जब महाराज की सृष्टि करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं भले सदगुरु से दीक्षा भी ले,
किंतु अपराधी को तो दंड देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हैं? वो सदगुरु से दीक्षा भी ले, किंतु जो अपराध करते हैं, नान महंत को लांछन लगता है, उसके जम महाराज उसके क्षमा नहीं करेंगे। ये आपको बोलना है। वो हमारे पास आ जाए, मैं उनको बताऊंगा, ये भाई तुम जपमाला भी करो, 1000 माला भी कर लो, गले में कंठी भी रख लो। जैसे मैंने कहा ना, गले में कंठी रखने से जम लोग स्पर्श नहीं करता है, किंतु जो अपराधी होता है ना, वो कंठी माला भी रखे, जप माला भी रखे, जब महाराज उसके इतना पिटाई करेंगे ना, मैं क्या बताऊं है। वो सोचा ये मैं तो कंठी माला रखा और तुलसी माला रखा है, जब महाराज मुझे स्पर्श नहीं करेगा है? ऐसे तरह से काम नहीं, अपराधी के क्षमा नहीं होगा। जो लोग कहेंगे आप इस कथा को सुना देना, सुनना इसको है। जो लोग नारायण महाराज जी को इतने नारायण महाराज जी उनके किया है, अब वो नारायण महाराज जी को अपराधी मानते, इसके लिए उनको कौन सा दंड होना चाहिए है? उसको सुना देना अच्छी तरह है। और सारे इस्कन के लोग नारायण महाराज पर ऋणी है, ऑल दे आर इंडेटेड टू नारायण गोसाई महाराज। भले उनके अपने संस्था के चलाने के लिए कुछ भी करे, उससे हमें कोई लेन देन नहीं। वो संस्था है, ठीक है, चल रही, इसके मतलब नहीं है मैं दूसरे की निंदा करें, निंदा करना है, ठीक है, अपने संस्था को चलाओ, कौन मना कर रहे हैं? अपने प्रचार करो, महाप्रभु के वाणी सभी प्रचार करें है। इसका मतलब नहीं है जे एक दूसरे के निंदा करके अपने संस्था को बढ़ाती है। ये राजनीति थोड़ी है? मुझे पता नहीं देश का राजनीति क्या है, इंडिया में राजनीति क्या है। कांग्रेस दूसरे के गाली देता है, भाजपा दूसरे के गाली देता है, सीपीएम के गाली, एक दूसरे के गाली देना शुरू कर देते हैं। ये राजनीति थोड़ी है, ये परमार्थिक जगत है। राजनेता क्या करते हैं, बोले वो पार्टी ने एक गलत काम किया नहीं किया, तब भी उसके ऊपर लांछन लगे, एक्विजिशन लगा दी है। किंतु पारमार्थिक जगत में ऐसी नहीं है। हमें ये नहीं है दूसरे के निंदा करके है अपना बढ़ापन करें, ये नहीं है। ये कहीं पर शास्त्र में लिखा नहीं है, ये अपराध ही है। हम तो इसकन के बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। इसकन ऐसे महान संस्था है धर्म राज्य में, न भूतो न भविष्यति। मैं भी प्रशंसा करता हूँ। साईं महाराज ने इसकन नाम से जो संस्था को स्थापित किया, इसकी प्रशंसा हजारों रूप से भी करने पर भी समाप्त नहीं होगा। वास्तविक सत्य है, गली गली में, शहर शहर में है इनकी प्रचार महाप्रकाश है। आज तक भी कहीं नहीं जाए, मुसलमान देश में भी चले जाओ है, हरे कृष्ण, देखो है कि है प्रचार के तरीका अच्छी है, किंतु इसके मतलब नहीं है ध्यान बड़ा हो गया और दूसरे के मैं निंदा करके और नीचे प्यार दे करके नीचे है। यही जो है बड़े, वो कौन करता है? जो मूर्ख व्यक्ति है। वास्तव जो इस्कन के भक्त जो वो नहीं करते, ये आपको समझो। जो वास्तव इस्कन के जो डिवोटी होगा वो कभी उसको निंदा नहीं करेगा। वो जानते हैं हम निंदा करने से जब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं। जो इस्कन के नहीं है, सो कॉल्ड इस्कन डिवोटी है, दे क्रिटिसाइज टू वैष्णवास है। इसलिए हमारे साथ महाप्रभु ने उपदेश किया है, साहर निंदा पड़ी कृष्ण कृष्ण पड़ी। हम किसके निंदा करना नहीं। यदि किसी के विचार अच्छा नहीं लगे, ठीक है, उससे दूर रहो। इसके मतलब नहीं उसके निंदा करो है। सब किसी के विचार हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता उससे दूर रहो। इसका मतलब नहीं है उसके अच्छा विचार अच्छा नहीं लगते उसको निंदा करो है। निंदा करना है। महाप्रभु ने क्या कहा, निंदा बढ़े कृष्ण कृष्ण बढ़े। इसको निंदा मत करो, सबके सम्मान करो, सबके आदर करो है। अपने भजन करो ना, अपने प्रचार करो है। महाप्रभु के वाणी, महाप्रभु ने क्या कहा, पृथ्वी ते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार। महाप्रभु ने क्या है, सर्वत्र प्रचार करो है। निकालो रथ यात्रा निकालो है कि नहीं? हाँ, मैं तो कहा था रथ यात्रा, इसे सूरीनाम में रथ यात्रा निकालो है। उत्साह होना चाहिए
हैं, सभी लोग एकत्रित हो, एक ही छत्र के नीचे, छाते के नीचे हम सब सम्मिलित होंगे। है वो छाता कौन है? चैतन्य महाप्रभु, सच्चिदानंद गौर है। आसन सच्चिदानंद गौर गौरी रूपी छत्र के नीचे हम सब एकत्रित होंगे और महाप्रभु के वाणी हम सब प्रचार करेंगे। प्रचार करो, कौन मना करे? है अपने संस्था बनाओ, है मंदिर बनाओ, कथा बचो, प्रचार करो। ये राजनीति नहीं है। हम सीपीएम है, हम क्या बोले इंडिया में क्या बोलते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इसलिए हमारे संस्था के स्थापना के लिए दूसरे की निंदा। ये राजनीति होना नहीं चाहिए और दूसरे की निंदा होना नहीं चाहिए। है मेरे कहने की यही तात्पर्य। जो निंदा करते हैं उसको अपराधी मानते हैं, उससे दूर रहो। है ये आप समझे अच्छी तरह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री भक्तिवेदांत महाराज की जय। प्रसाद लेना जी, हैं? महाप्रसाद की जय। आया समझ गए? हाँ, गुरुदेव की ध्वजा सर्वत्र होना चाहिए। है ध्वजा समझते हो? जी, फ्लैग। फ्लैग है। वास्तव इस्कन के जो कुछ भी है, इसलिए गुरुदेव ने कहा है, बोले साईं महाराज के पहला शिष्य कौन है? गुरुदेव के लेक्चर में सुनना, बोले मैं ही। गुरुदेव ने सर नारायण गोस्वामी महाराज बोले साईं महाराज के पहले शिष्य मैं ही, तुम लोग कोई नहीं है। अरे एक तो शिष्य होता है, मंत्र शिक्षा होता है, और एक शिष्य क्या होता है? शिक्षा शिष्य होता है। एक मंत्र शिष्य होता है और एक शिक्षा। बोले मैं सारी शिक्षा साईं महाराज से लिया, तो वो मेरा शिक्षा गुरु इसलिए कार्य। दो गुरु होता है, एक होता है दीक्षा गुरु और एक होता है शिक्षा गुरु। इसलिए दीक्षा गुरु की शिक्षा भेद नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने इसलिए तो लिखा मेरा शिक्षा गुरु कौन है? भक्तिवेदांत स्वामी महाराज। इसलिए वो किताब लिखा, क्या लिखा? मैं शिक्षा गुरु प्रिय बंधु। प्रिय बंधु है। अरे गुरु को भी बंधु होता है? बोले हाँ। है वही परम बंधु होता है, सही से परम बंधु, सही पिता माता। श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता, वही हमारे मित्र है, वही माता है, वही पिता है जो मुझे भक्ति देते है। कितना आदर। देखो मैंने गुरुदेव के साथ कम से कम कितना 10-12 साल तो मैं गुरुदेव के साथ भ्रमण किया सारे विदेश में। गुरुदेव जो जहाँ जहाँ पर जाते थे, कथा जो बोलते थे, अभी भी देखना उनके लेक्चर में 5 दिन जहाँ पर कथा होती है, तो 7 दिन कथा होते हैं, कम से कम 2-3 दिन तो केवल उन्होंने क्या करता था? साईं महाराज की ग्लोरिफिकेशन करते थे। भागवत कथा सुनने के लिए पहले ही उन्होंने केवल 3 दिन लगातार, 2 दिन 3 दिन लगातार क्या करते थे? साईं महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन करते थे। हर जगह में, मैं फ्रांस में गए, हॉलैंड में भी आया, और क्या बोले इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ पर गुरुदेव की जाते थे, मैं गुरुदेव के साथ तो सर्वत्र भ्रमण किया। ब्राजील, अमेरिका, सब जगह। गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज पहले 2-3 दिन तो केवल उनकी ग्लोरिफिकेशन करते थे। हाँ, साईं महाराज प्रभुपाद के बारे में सुनो है। इसलिए मैंने इनको कहा, बोले तुम जो गीता सेमिनार करते हो, पहले कम से कम 1 दिन 2 दिन साईं महाराज की ग्लोरिफिकेशन करो, सब लोगों के समाचार आएगा, समझ में आएगा। है नहीं तो नया लोग बोले क्या बोल रहे हैं, गीता तो सुन लिया और गीता सुन करके तुम्हारे 5 दिन खत्म हो गया और कपड़ा झाड़ करके चले जाएंगे। क्यों? वही इस्कन के जो दुष्ट व्यक्ति है, इस्कन का नहीं है वो दुष्ट व्यक्ति है। वो आकर के तुम्हारे गीता के सुना, तुम्हारे ऊपर जो अट्रैक्शन है वो तुम्हें उसको क्या करेगा? बिगड़ना, उसके बिल्कुल बिगड़ दे। और तुम्हारी एक कथा 7 दिन जो 5 दिन जो तुमने जो परिश्रम दिया, और तुम्हारे परिश्रम क्या हो जाएगा? सब मिट्टी में चला जाएगा। इसलिए नहीं, उनको सुनाओ। सब जो गीता की सेमिनार सुनने वाले, उनके दृढ़ता हुई, दृढ़ता होगा ये। हाँ, ये साईं महाराज के साथ नारायण महाराज नारायण फलवार के साथ क्या संबंध था? इतिहास क्या था? इतिहास क्या है? वो अभी है कि नहीं? ये सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ये सुनना चाहिए। मैंने इनको भी कहा था, ये देखो आपको गीता सेमिनार करने के पहले उल्लू के तो कम से कम बेसमेंट बनाओ। है नहीं, तुम 7 दिन गीता सुनाया, सारे गीता सुना दिया, और जो कि नीम माला भी दे दिया, अच्छा तुलसी माला भी दे दिया, है
और इसकन के तथाकथित जो सोकल इसकन डिवोटी, इसकन के डिवोटी नहीं करता है, मैं 100% नहीं करता है, मैं इसकन के कभी निंदा नहीं करता, इसकन के डिवोटी नहीं करता है। तो सकल इसकन डिवोटी जो धूर्त है, कपट है, वो नामधारी इसकन खाई, वो तुम्हारे क्या करेगा, वो निंदा करेगा, ये जो तुम्हारा निंदा को ये करने के लिए सपोर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो उनको पूरा आपको समझाना पड़ेगा, है समझ में? यही तो है प्रचार के तरीका है। नहीं तो आप 10 साल 20 साल 50 साल तक ऐसे गीता सेमिनार करो, हाथ में कुछ नहीं आएगा, है? हमारे प्रचार तब सफल होगा एक व्यक्ति भगवत भजन में प्रवेश करे, समझ में? है यही है। इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, और समझ जो है गीता सेमिनार बाद जो कुछ भी कहोगे उसके पहले 1-2 दिन क्या करो, इतिहास को सुना है, इतिहास को सुना, कल सुनाएंगे, है कल सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, हाँ सुनाना चाहिए, नहीं तो उसको क्या करेंगे, नया लोग नहीं जानते हैं, और वो इधर रहते वो करते, वो जो करे वो सत्य होगा सिर्फ, है? जैसे आप नया है, आप जानते नहीं है, आप तो साल में एक बार है, आपको पता ही नहीं, और आकर के देखा तो वो व्यक्ति भी माने जो भाई पिछले बार जो 100 व्यक्ति को सुनाया था वो कहाँ गए, और सब गए कहाँ गए, वो उठ गए इसलिए उनको बेसमेंट होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ये मेरा कहने की तात्पर्य। गुरु परंपरा है, हाँ गुरु परंपरा के बारे में सुना, जिस वास्तव रूप में साईं महाराज कौन है, नारायण महाराज कौन है, गौड़ी मठ क्या है, गौड़ी मठ के साथ इस्कॉन के साथ रिलेशनशिप क्या है, भक्ति प्रज्ञान केशव कौन है, भक्ति सिद्धांत, इसके बारे में अच्छी तरह से सुनना चाहिए। तो ये स्टार्ट करें, हाँ एक बोलो वृंदावन बिहारी कम से कम 15 मिनट ये सुना, इसके बाद आप गीता सुना, हर रोज 15 मिनट इसको सुना, तब लोगों की इम्प्रेस पड़ेगा, भाई नया लोग आए हैं, ऐसा नहीं, हम कहाँ से आए, हमारे बारे में तो जानना चाहिए ना, है? कोई उड़ो खाई गोविंदा नहीं जैसे कुछ नहीं होता है, अरे ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति कहाँ से है, कौन इसके बैकग्राउंड क्या है, किसके शिष्य है? कौन है, क्या करता है? तो ये हमारी ये प्रचार के तरीका, नहीं तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति तुम्हारे सारे प्रचार को क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे, परित्राण विनाशाय परित्राण विनाशाय, ठीक है, कल इसको बोलो, कल इसे बोले, हमने प्रिपरेशन कर देंगे, गुरु परंपरा के सब दिखा देंगे, हाँ नहीं साईं महाराज को उसको उसको दिखा, वो जो साईं महाराज के साथ गुरुदेव के साथ जो वार्तालाप उसको भी लोगों के दिखाना पड़ेगा, दिखा लोग के इम्प्रेस में देखने से, चित्रपट देखने से यहाँ उसके याद रहे। मुझको एक प्रेजेंटेशन है, कुछ क्या करा हॉलैंड में करा, कैसे सबके रिलेशन सब है, गुरुदेव के रिलेशन सब, ये प्रेजेंटेशन कल देंगे, हाँ ये प्रेजेंटेशन उनको पास करो, कम से कम 10 मिनट जो है जी, चलो आप 1-1.5 घंटा जो बोलो उसमें 10 मिनट ये प्रेजेंटेशन को रखो, तो जो नया लोग जो आए हैं, जैसे ये लोग नया है, ये लोग जानते नहीं है, बोले नारायण महाराज कौन है, और नारायण महाराज के साथ साईं महाराज क्या संपर्क है, व्हाट इज द रिलेशनशिप है, इसको सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, गौर प्रमाण। अच्छा चलो अभी प्रसाद है, महाप्रसाद की अवतार से स्वामी प्रभुपाद महाराज, अरे ये तो अवतार है, 27 अवतार है, गुरुदेव ने कहा ये स्वामी महाराज कौन थे, बोले चैतन्य महाप्रभु के 27 अवतार, हाँ गुरुदेव ने स्वयं कहा, मैं नहीं कहा था, जिस स्वामी महाराज भक्तिवेदांत महाराज ही दा 27 अवतार अपना चैतन्य महाप्रभु, नहीं तो ऐसे प्रचार कैसे कहे, कितना महान स्थान है, जल है?